Namaste and good afternoon once again. I am Susan from Apollo Hospitals, Gandhinagar. Blood is known as life to every human being. Donating blood is giving life to those who are losing it is very important. Tomorrow, the 14th of June, is World Blood Donors Day, and we have with us Dr. Sanjay Gupta, at present the HOD of Blood Bank at Apollo Hospitals, Gandhinagar. He has served previously as chairman of Indian Society of Blood Transfusion and Immunohematology in Gujarat. He is also a principal assessor of NEPH Blood Bank. So welcome you, sir. Thank you, Susan. As we all know that today we are going to discuss about the topic blood donation and its importance on this occasion of World Blood Donors Day 2020. So welcome you, sir, once again. And the very first question we would like to ask you, क्यों 14 जून ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे की तरह? Although round the year every blood bank is celebrating or do some celebrations to encourage voluntary blood donation and doing activity for promotion of voluntary blood donation, but 14th June is celebrated as World Blood Donor Day to thank our donors. First, to thank our donors who have donated blood or who are donating blood, and to acknowledge the contribution of them because they are saving lives of our patients. The second objective was to create awareness among general public to donate blood, and the third one to ensure the availability of safe blood. That are, although there are so many things or so many objectives of this 14th day, but these are the main objectives by which we are celebrating 14th June as World Blood Donor Day. Yes, very true said. Why everybody emphasizes on regular voluntary blood donation? Before some time, if you see, before some time we were talking about availability of blood for the patients, but now we are talking about safe blood. So what is safe blood? Safe blood means it should not harm the patient. और जो हम कहते हैं कि regular repeat voluntary blood donation, as per the definition, he should not donate for any particular patient, but he should donate as such for any patient. And regular means at repeated interval, maybe for 3 months, every 3 months or 4 months, he should donate blood. So if a person donates blood at 3 months interval or 4 months interval, हमको पता है कि उसका व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द डोनर बिफोर 3 मंथ्स. यदि आज को डोनर डोनेट करता है ब्लड और उसके अंदर हम कितने भी टेस्ट कर लें, गवर्नमेंट ने बोला हमको HIV टेस्टिंग करना है, हेपेटाइटिस बी करना है, हेपेटाइटिस सी करना है, हम कितना भी टेस्ट कर लें, दुनिया में कोई भी ब्लड सेफ नहीं है 100%. सबके अंदर चांसेस होते हैं किसी पेशेंट को इन्फेक्शन होने के. तो जो भी अब एक नया डोनर आता है मेरे पास में, मैं टेस्ट करता हूँ, लेकिन हो सकता है उसमें इन्फेक्शन है, लेकिन मेरे टेस्ट डिटेक्ट नहीं करते. दैट इज़ कॉल्ड विंडो पीरियड है. लेकिन यदि कोई डोनर हर 3 महीने में आता है तो मुझे पता है उसकी हैबिट्स क्या है, अच्छी हैबिट्स है, लास्ट टाइम का उसका क्या रिपोर्ट था, तो वो हम मानते हैं कि उस अंदर सेफ ब्लड होता है और उसको कोई कंपल्शन नहीं है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली खुद के मोटिवेशन से वो यहाँ पर आ रहा है. कोई कंपल्शन नहीं है, कोई चीज़ हाइड नहीं करता, वो कोई भी अपनी हिस्ट्री छुपाता नहीं है, वो क्योंकि उसका वो रूटीन है और उसमें अवेयरनेस है, वो सब कुछ जानता भी है ब्लड डोनेशन के बारे में. तो हम लोग कहते हैं कि ऐसे ब्लड हमेशा डोनर सेफ होते हैं. अब रेगुलर क्यों डोनेट करना चाहिए? एक तो सेफ्टी हो गई कि पेशेंट की सेफ्टी है इसके अंदर. सेकेंड, we are having in our hospital we are having 2 types of patient. One is short term patient and second is long term patients. Short term means कोई पेशेंट सर्जरी के लिए आ रहा है, कोई पेशेंट मेडिकल कोई शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन हुआ, कुछ हुआ, तो उसके लिए हो सकता है 5 दिन एडमिट रहेगा, 10 दिन एडमिट रहेगा. तो whenever we need blood for such patients, it's very easy to arrange blood. For we can tell the relative of the patient to arrange donors also. So, but for long term patients, अभी आप सबको पता है कि कैंसर पेशेंट्स होते हैं, इनका ट्रीटमेंट महीनों चलता है, सालों चलता है. डायलिसिस पेशेंट्स हैं, फिर थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, उनको तो लाइफ लॉन्ग चलता है. थैलेसीमिया मेजर बीमारी होती है जिसके अंदर बच्चों को हर महीने या फोर्टनाइटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है. तो इन लोगों को कंटिन्यूसली ब्लड की ज़रूरत पड़ती है. अब यदि कोई आदमी रेगुलर ब्लड डोनेट नहीं करेगा तो इनका ब्लड कहाँ से आएगा?
क्योंकि इनके पास में इतने डोनर्स नहीं हो पाते बाद में, कुछ टाइम कर सकते हैं अरेंज, बाकी बाद में इतने डोनर्स अरेंज नहीं हो पाते कि हर बार हम कहें कि हाँ डोनर लेके आओ डोनेट करें। तो ऐसे इसलिए क्या है, जो डोनर्स डोनेट करते हैं रेगुलरली, तो इस तरह के पेशेंट्स हमारे लिए उनको हम उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं। हाँ सर, जो आपने बोला है वो रेगुलर ब्लड वॉलेंट्री डोनर्स बहुत अच्छे होते हैं और वो उससे बहुत फ़ायदा भी होता है बॉडी के अंदर। हम लोग बहुत सुनते हैं दो टर्म्स के बाद में, एक तो है खून और एक है खून के कंपोनेंट्स के बाद में, तो इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? पहले और इनफैक्ट अभी भी काफ़ी सारी स्टेट्स में, काफ़ी सारी सिटीज़ में, स्पेशली छोटे ब्लड बैंक्स में डोनर से हम ब्लड लेते हैं और ऐसे के ऐसे ब्लड पेशेंट को टेस्टिंग करके दे देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड होल ब्लड, मतलब हमने होल ब्लड डोनेट करवाया और होल ब्लड ही पेशेंट को दे दिया, उसको हम होल ब्लड बोलते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ मेनी कंपोनेंट्स, मीन्स इट इज़ हैविंग रेड सेल्स, इट इज़ हैविंग वाइट सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। सो एवरी कंपोनेंट ऑफ दिस ब्लड, means whether it is red cell, white cell, it has certain advantages and certain disadvantages or what we call side effects. तो अभी कंसेप्ट क्या है कि जो चीज़ पेशेंट को चाहिए we have to give that particular component only. If a patient requires red cell, we should give red cell only. थैलेसीमिया पेशेंट है, उसको रेड सेल चाहिए होता है, यदि मैं उसको होल ब्लड दूंगा तो उसमें प्लाज्मा भी जाएगा, तो उसको चांसेज है एलर्जिक रिएक्शन होने के। सेम चीज़ है, मुझको डेंगू पेशेंट आया, उसको प्लेटलेट देना है, लेकिन मैं रेड सेल दूंगा तो अननेसेसरी उसके अंदर उसका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमो कंसंट्रेशन बढ़ेगा उसका, तो वो साइड इफेक्ट ना हो, इसलिए हम लोग कहते हैं कि आजकल जो बड़े ब्लड बैंक्स हैं वो अपनी स्पेशल लेबोरेटरीज सेट करते हैं, जिसको हम कंपाउंड लेबोरेटरी बोलते हैं। तो जो ब्लड डोनर डोनेट करता है उसको डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट करते हैं हम लोग, रेड सेल अलग करेंगे, प्लाज्मा अलग करेंगे, प्लेटलेट अलग करेंगे और उनको अप्रोप्रिएटली स्टोर कर देते हैं। और जो पेशेंट को जो चीज़ चाहिए बस वही देना है। तो ये अभी क्या है कि जितने भी बड़े ब्लड बैंक से हर कोई जा रहा है कि हमको कंपोनेंट ही मतलब मिलना चाहिए। दैट इज़ ए बेटर टेक्निक, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं। हाँ जी सर, कभी बहुत बार सुना है कि हम लोग पेशेंट्स लोग ऐसे बोलते हैं वी गेट अ कॉल टू डोनेट समथिंग एल्स देन ब्लड, तो बिसाइड्स ब्लड और क्या डोनेट कर सकते हैं? या पिछले यदि कुछ सालों में देखें तो हमारे यहाँ बहुत अवेयरनेस आई है ब्लड डोनेशन के लिए, स्पेशली कुछ स्टेट्स जैसे गुजरात में हम हैं, गुजरात में मोर देन 80% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है। तो लोग को आप फ़ोन करोगे ब्लड देना है तो लोग इजीली रेडी हो जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से आपने देखा कैंसर पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं और ऐसे हर साल हमको डेंगू आता है, लगभग डेंगू आता है और भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिसके अंदर पेशेंट में प्लेटलेट की कमी हो जाती है। मैंने बताया आपको, हम जो ब्लड कलेक्ट करते हैं उसमें से प्लेटलेट बनाते हैं, रेड सेल बनाते हैं, प्लाज्मा बनाते हैं, लेकिन जो प्लेटलेट इसमें से बनता है उसकी डोज बहुत कम होती है। यदि मुझे एक पेशेंट को प्लेटलेट देना है, एक डेंगू का पेशेंट आया है उसको प्लेटलेट देना है, तो मुझको ऐसी 6 यूनिट प्लेटलेट पेशेंट को देनी पड़ेगी, एक एडल्ट पेशेंट को। ब्लड इज ए डबल एज सोर्ड, मीन्स इट कैन गिव लाइफ बट इट कैन टेक लाइफ ऑल्सो। तो ब्लड के जितने अच्छे बेनिफिट्स हैं उतने ही साइड इफेक्ट्स भी हैं उसके, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो बिफोर गिविंग एनी ब्लड कंपोनेंट और ब्लड, डॉक्टर ऑलवेज see what is the benefit and what is the risk. If benefit is more, then only he will decide to give blood, otherwise he will refuse to give blood. So अभी हम लोग कहते हैं डेंगू पेशेंट आया या कैंसर पेशेंट आया, हमको प्लेटलेट देना है, तो उसके लिए एक स्पेशल मशीन्स होती हैं, स्पेशल मशीन उसको बोलते हैं सेल सेपरेटर या एफेसिस मशीन। वहाँ से उस मशीन से हम डोनर के बॉडी में से जो चाहे निकाल सकते हैं। हमको रेड सेल चाहिए रेड सेल निकाल सकते हैं, प्लाज्मा चाहिए प्लाज्मा निकाल सकते हैं, प्लेटलेट चाहिए प्लेटलेट निकाल सकते हैं। तो हमको जो भी चाहिए हम डोनर के बॉडी में से ले सकते हैं। अब उसका फ़ायदा क्या होता है कि जहाँ मुझे 6 डोनर्स का ब्लड लेके उसका प्लेटलेट सेपरेट करके पेशेंट को देना पड़ता, उसकी जगह में एक ही डोनर से प्लेटलेट ले सकता हूँ और वो एक पेशेंट का एक डोज हो जाता है। फ़ायदा क्या होता है कि मैंने 6 डोनर का ब्लड एक्सपोज नहीं किया पेशेंट को रिस्क हमेशा 1 गुना हुई। पहले केस में 6 गुना रिस्क होती है, इसमें 1 गुना रिस्क होती है।
दूसरी बात, इसका जो रेस्पॉन्स मिलता है वो बेटर मिलता है। इसके अलावा और भी एडवांटेज होते हैं, अभी बहुत टाइम लग जाएगा इसके अंदर। लेकिन हमेशा अभी प्रॉब्लम क्या होती है एसडीपी के अंदर, उसको बोलते हैं सिंगल डोनर प्लेटलेट, एफएचसी प्लेटलेट बनाते हैं कि जब भी डोनर्स को हम बोलते हैं कि आपको ब्लड डोनेट करना है, दे आर रेडी। बट मैं यदि बोलूँगा प्लेटलेट डोनेट करना है तो पूछता है क्या होता है, मैं बोलूँगा कि इसके अंदर हम चेक करेंगे, फिर आपको बैठना पड़ेगा, एक मशीन होती है उस पर 1 घंटा लगेगा, आपको प्लेटलेट डोनेट करना है। तो सुनता है 1 घंटा, वो कहता है नहीं यार मुझे नहीं देना सर, मुझे तो ब्लड ही देना है। बट अभी बड़े सिटी, बड़े सेंटर्स में काफ़ी लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है प्लेटलेट के लिए कि लोग रेडी हों देने के लिए। और ये टोटली सेफ प्रोसीजर्स होते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं होती है। सेम वे यदि हम प्लेटलेट के साथ में हम बात करें हैं ग्रेन्युलोसाइट की, एक और कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, इट्स ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनमें एज ए लाइफ सेविंग ड्रग इसको यूज़ करते हैं। मीन्स वो आपको पता है उनमें इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं होती है उन पेशेंट्स के अंदर, और जब इम्यूनिटी नहीं होती तो उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब इन्फेक्शन होता है उनको उन पर एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं करती हैं। तो ऐसे केस में अभी काफ़ी सारे हेमेटोन्कोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिशियंस होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट को प्रेस्क्राइब करते हैं। वो क्या एक तरह का वाइट सेल है जिसके अंदर अपन डोनर को लिटाते हैं मशीन के ऊपर, और डोनर को लिटाते हैं हम लोग मशीन के ऊपर, और उसमें से वाइट ब्लड सेल को ही हम लोग निकाल लेते हैं, और यही विदिन 24 आवर्स पेशेंट को देना होता है। हमने बहुत सारे प्रोसीजर्स किए और इसके रिजल्ट बहुत फैंटास्टिक होते हैं कि जो पेशेंट की कंडीशन होती है, और ये देते रूटीन नहीं देते कभी भी इसको, वो तभी देंगे जब इसके अंदर कोई एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं कर रही, पेशेंट को फीवर आ रहा है, पेशेंट बिल्कुल लाइफ सेविंग कंडीशन के ऊपर है अभी, तो ऐसे केस में देते हैं तो उसका रेस्पॉन्स मिलता है हमको, और कुछ टाइम हमको ब्रीदिंग टाइम मिल जाता है हमको उसके लिए, ताकि हम लोग बाकी पेशेंट फिर रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऐसे पेशेंट के लिए। लेकिन ये चीज़ की रूटीन नहीं है। एक तो इसके लिए स्पेशल परमिशन भी चाहिए, गवर्नमेंट से परमिशन होनी चाहिए आपके पास में। फिर जो आप करते हैं स्पेशलाइज प्रोसीजर 3 से 4 घंटे लगते हैं। अगेन अभी मैं किसी डोनर को बोलूँ कि 3 से 4 घंटे आपको रुकना है तो कोई रुकता नहीं है। तो मेरा सिर्फ एक ही है कि आज मैं टॉक कर रहा हूँ तो कम से कम पब्लिक को मैं मोटिवेट कर सकता हूँ कि आपको ये जो वाइट सेल्स हैं ये भी डोनेट करने चाहिए, प्लेटलेट भी डोनेट करना चाहिए। जैसे ब्लड डोनेट करते हैं ऐसा ये कुछ है, सब कुछ है, इसमें कोई रिस्क नहीं होती है। जी सर, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया हम लोग को। ये जो एफेरेसिस के बारे में आप बात कर रहे थे और ब्लड डोनेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज के ज़माने में कितना सेफ है? मतलब अभी जो महामारी चल रही है हमारी, तो अभी के कंडीशन में कितना सेफ? ये बहुत सेफ है, बहुत सेफ प्रोसीजर है। जैसे ब्लड होता है, अब देखो दुनिया भर के अंदर इतने सारे ब्लड डोनेशन होते हैं, और हमारे इनफैक्ट हमारे गुजरात में ही सिर्फ 8 लाख डोनेशन होते हैं, लेकिन मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो ब्लड डोनेशन भी बहुत सेफ है। अब हम बात करें एफरेसिस की, अभी भी इंडिया के अंदर या दुनिया भर में इतने एफरेसिस प्रोसीजर डेली होते हैं। जब डेंगू सीजन आता है तो आप बिलीव नहीं करोगे कि एक ब्लड बैंक में डेली 4-4, 5-5 या कभी कभी 10-10 डोनेशन भी होते हैं। तो इतने सारे प्रोसीजर्स के अंदर मेरे 17 साल का कैरियर हो गया, मैंने कभी भी कोई सीरियस इफेक्ट नहीं देखा इन डोनेशंस का। इवन ग्रेन्युलोसाइट हम लोग हंड्रेड्स में कर चुके हैं, बहुत सारे प्रोसीजर कर चुके हैं हम लोग, हमने कभी भी कोई बड़ा सीरियस इफेक्ट नहीं देखा। हाँ, लेकिन फिर भी कोई भी मेडिकल प्रोसीजर होता है, इट्स नॉट विदाउट एनी साइड इफेक्ट। इफ वी गो आउटसाइड ऑन आवर व्हीकल देयर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ एनी एक्सीडेंट। मीन्स व्हीकल लेके बाहर निकले तो हमको पता है साइड उसमें एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग व्हीकल चलाना बंद कर देंगे। सेम वे में यदि मुझे कोई पेन हो रहा है, कहीं हेडेक हो रहा है, और मैं केमिस्ट्री शॉप पे गया, मैंने बोला एक टैबलेट दे दे, उसने कॉम्बिफ्रेन दे दिया है ना, या कोई और मेडिसिन पेन किलर दे दिया, वो यदि आप उसके साइड इफेक्ट पढ़ेंगे तो वो किडनी तक फेल कर देता है। कभी कभी कुछ मेडिसिन होती है ओवर द काउंटर मेडिसिन, उनसे बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स होती हैं। लेकिन आप डायबिटीज़ की दवाई लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं, हर चीज़ के साइड इफेक्ट है। हम घर में गैस यूज़ करते हैं, गैस कभी बस्ट हो सकती है, लीकेज हो सकती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम लोग काम करना बंद कर दें। जितना प्रोसीजर आप इंजेक्शन लेते हैं उसके भी साइड इफेक्ट हैं। तो ब्लड डोनेशन के अंदर भी छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन सरकार की पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट है कि ब्लड बैंक्स के अंदर हम जब भी ब्लड लेता है वहाँ डॉक्टर होता है, इमरजेंसी मेडिसिन होती हैं, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो हम लोग टेंशन नहीं, डोनर को जब भी कुछ होगा तो हम लोग उसको इजीली सेव कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। थैंक यू सर। नाउडेज मीडिया और
बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स टॉक कर रहे हैं जैसे कॉन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी इन कोविड-19, तो ये क्या है? ये थोड़ा लंबा टॉपिक है एक्चुअली। ये जस्ट एक तरह का एंटीडोट है। आप जानते हैं जो वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन में क्या होता है, हम सब वैक्सीन लेते हैं जब छोटे होते हैं तो वैक्सीन में क्या होता है, एक छोटा सा इन्फेक्शन हमारी बॉडी में डाला जाता है, कोई भी तरह का, चाहे वायरस हो या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में डालेंगे और हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडीज बनाती है, एक तरह केमिकल बनाती है, मान लीजिए उसको एंटीबॉडी बोलते हैं। और जब भी नेक्स्ट टाइम कभी भी वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आएगा तो वो एंटीबॉडी से इन्फेक्शन से लड़ेगी और उसको ख़त्म कर देगी। ये हमारा प्रिंसिपल है वैक्सीनेशन का। और ये जो कोविड है अभी, ये भी एक तरह का इन्फेक्शन है, सबको पता है। जब भी ये इन्फेक्शन किसी पेशेंट को होता है तो उसकी बॉडी में भी उसकी अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अब जो पेशेंट हमारे एडमिट हुए कोविड वाले, उनके अंदर एंटीबॉडी बन गई और वो रिकवर हो गए, बाद में ठीक हो गए बिल्कुल। और जब ठीक होते हैं तो उसकी बॉडी में, उसके प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ पहले से हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट्स के अंदर कुछ गाइडलाइंस हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके पेशेंट का प्लाज्मा निकाल लेते हैं और फिर हम ऐसे पेशेंट को देते हैं जो कोविड-19 कारण से बहुत सीरियस हो रहा है, अभी एडमिट, दूसरा पेशेंट है वो हमारे एडमिट है लेकिन बहुत सीरियस कंडीशन में है, जिस पे बाकी ड्रग्स काम नहीं कर रही। आपको पता है अभी कोविड के अंदर बहुत सारे ट्रायल्स हो रहे हैं मेडिसिन के, रोज़ नई मेडिसिन आती है, रोज़ नया ट्रीटमेंट आता है। ऐसे प्लाज्मा का ट्रीटमेंट भी आया था, क्योंकि पहले भी साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने इसको ट्राई किया काफ़ी बाकी डिजीज़ के अंदर भी। इबोला में ट्राई किया था, दूसरी डिजीज़ में ट्राई किया था पहले, तो रिजल्ट भी एनकरेज होते हैं, कभी कभी उसके अंदर अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। और अभी रोज़ नई मेडिसिन आ रही हैं, आप सबने पढ़ा होगा कि अभी जो नया हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, लेकिन कोई भी डेफिनेट ट्रीटमेंट अभी भी नहीं है, सब ट्रायल्स हो रहे हैं, कुछ में अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, कुछ में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो ये प्लाज्मा जो सीरियस पेशेंट होते हैं, जिनके अंदर रूटीन ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होते, उनके अंदर और कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत सीरियस हो गए, उनकी लाइफ खतरे में है, ऐसे केसेस के अंदर ऐसा प्लाज्मा डोनर से लेके उनको दे सकते हैं। और रिजल्ट्स जो लोग कर रहे हैं, रिजल्ट्स आर वेरी एनकरेजिंग। तो मेरा हमेशा एक अभी सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी पेशेंट्स हैं कोविड के जो ठीक हो रहे हैं, अब भगवान ने उनको ठीक किया है, तो उनका एक ड्यूटी बनता है, मॉरल ड्यूटी बनता है कि वो अपने आप को एनरोल करें एज ए कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा डोनर। कि जो भी ब्लड, अच्छा ये हर कोई नहीं कर सकता इसका, ये जो प्रोसीजर है, क्योंकि ये ट्रायल है, ये कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक तरह का क्लिनिकल ट्रायल है, तो ये गवर्नमेंट के सुपरविजन में होता है। तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, स्पेशल परमिशन, तो गवर्नमेंट परमिशन देगी तो ही हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। तो जो भी ब्लड बैंक के पास में, जो भी हॉस्पिटल के पास में ऐसी परमिशन है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहाँ उनसे कांटेक्ट कीजिए, अपने आप को एनरोल कीजिए। जब भी पेशेंट आता है, आपको ऐसा वो सीरियस पेशेंट आता है, तो आपका प्लाज्मा हो सकता है उसकी जान बचा ले। तो ये, लेकिन इस पर बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है अभी और शायद चलता रहेगा। जी हाँ सर। सर, वी आर कंटिन्यूसली रीडिंग और मीडिया में भी बहुत बार बोला जाता है ब्लड क्राइसिस के बारे में। सो क्या वो सिचुएशन रियल है और क्या होता है वो? नहीं, रियल में अभी यदि आप किसी भी ब्लड बैंक के अंदर फ़ोन करेंगे तो किसी के पास ब्लड नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इस समय कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं या सेफ्टी गाइडलाइंस हैं, नॉट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, सेफ्टी गाइडलाइंस हैं कि हमें घर से बाहर निकलना नहीं है, और इसलिए लोग क्या चाहते नहीं है कहीं भी जाना, वो अपने घर में रहना पसंद करते हैं। और स्पेशली यदि उनको बोलो किसी मेडिकल फैसिलिटी में जाना है, तो जैसे हॉस्पिटल में ब्लड बैंक है, वहाँ जाना है डोनेट करने के लिए, तो वो आदमी अवॉइड करते हैं, उनको डर लगता है कि मुझे भी कोविड हो जाएगा। सेम ब्लड बैंक होते हैं, हालांकि स्टैंडअलोन ब्लड बैंक होते हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल नहीं होता, लेकिन फिर भी पब्लिक डरती नहीं, ये भी मेडिकल सेंटर्स हैं, तो उनको लगता है कि वहाँ जाऊँगा तो मुझको कोविड हो जाएगा। लेकिन मेरा एक मानना है कि हम डेली बाहर जाते हैं, जो भी घर पे भी रहते हैं लोग, वो लोग डेली बाहर सामान लेने बाहर जाते हैं, सब्जी खरीदने बाहर जाते हैं। सब्जी की दुकान पे पता है एक आदमी आता है, पोटैटो, टोमेटो सब पर टच करता है और उसमें से छाँट के लेता है। थोड़ी देर बाद में दूसरा आदमी जाएगा, वो भी उसको टच करेगा। तो मीन्स मतलब कि वहाँ ज़्यादा रिस्क है बट इन्फेक्शन होने के बजाय कि हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि हॉस्पिटल में जो लोग हैं, ब्लड बैंक में लोग हैं, वो लोग अवेयर हैं, उनको पता है सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, वो मेडिकल पर्सनस हैं।
तो वहाँ पर ज़्यादा सेफ्टी है बल्कि। तो लेकिन अभी पब्लिक को समझना पड़ेगा कि हमको ब्लड डोनेट करेंगे तो ही हमारा काम बनेगा। क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि जो रेगुलर पेशेंट्स होते हैं, जैसे थैलेसिया पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, डायलिसिस है, वो लोग कहाँ जाएंगे? डोनर नहीं है, यदि उनको आना है, उनके यदि ब्लड नहीं देंगे तो उनका नहीं चलेगा, उनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उनके लिए ब्लड तो देना ही पड़ेगा। तो जब तक आप रेगुलरली ब्लड डोनेट नहीं करेंगे आसपास जाके और आपको जाके चेक कीजिए, यदि वहाँ पर सारे सेफ्टी फीचर्स हैं ब्लड बैंक में तो आप डोनेट कीजिए। आपको लगता है नहीं सेफ्टी कंप्रोमाइज है तो वहाँ नहीं जाने का, लेकिन मुझे पता है कि इस समय ऐसा कहीं नहीं है, हर आदमी सेफ्टी का पूरा ध्यान रख रहा है, क्योंकि सिर्फ आप रिस्क पर नहीं है, वो ब्लड बैंक वाला भी रिस्क पर ही है इतना ही। यदि कोई आप बाहर से आते हो तो उसका भी रिस्क बढ़ता है, जैसे आपको रिस्क है ऐसे उसको भी रिस्क बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं तो यही कह सकता हूँ कि या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे चलो ब्लड बैंक में नहीं जाना, लेकिन मेरे ऑफिस में, मेरी सोसाइटी में कुछ लोग हैं डोनेट कर सकते हैं, आप ब्लड बैंक्स हैं ऐसे, उनको फ़ोन कीजिए, उनकी मोबाइल वैन आएगी आपके यहाँ और वहीं पर ही आपके घर के अंदर या घर के बाहर ब्लड डोनेट करके चली जाएगी, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्लीज़ ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि वो ये पेशेंट, ये तो अच्छा है अभी कि आई डोंट नो द रीज़न, लेकिन हॉस्पिटल में पेशेंट्स कम हो गए हैं काफ़ी। कोई रीज़न नहीं पता, क्योंकि हो सकता है पॉल्यूशन कम हो गया इसलिए इन्फेक्शन कम हो गए हैं और इसलिए पेशेंट नहीं आ रहे हैं, सर्जरी भी कम हो रही है, तो डिमांड ओवरऑल कम हो गई है, तो इसलिए शायद थोड़ा चल पा रहा है। यदि डिमांड पूरी होती, जो नॉर्मल डिमांड होती है, तो इस समय तो बहुत बड़ी क्राइसिस होती है ब्लड के लिए, लेकिन क्योंकि डिमांड कम है, लेकिन इमरजेंसी पेशेंट्स हैं, आप किसी को एक्सीडेंट हुआ, किसी को हार्ट अटैक आया, किसी को बाईपास सर्जरी करनी है, और ये रेगुलर पेशेंट्स जो हैं इन सब का लिए तो ब्लड चाहिएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कम टू ब्लड बैंक एंड डोनेट, एंड डरना नहीं है। Yes, sir. So, are there any main advantages of donating blood? डेफिनेटली बहुत सारे एडवांटेज है ब्लड डोनेट करने के। सबसे बड़ा एडवांटेज है फीलिंग ऑफ डूइंग समथिंग फॉर अदर्स, मीन्स मैनी पर्सन्स आर डूइंग चैरिटी, एवरीबडी वांट्स टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। सो कुछ लोग चैरिटी करते हैं, मनी डोनेट करते हैं, कुछ लोग क्लोथ डोनेट करते हैं, कुछ लोग स्कूल बनाते हैं, तो हर आदमी चाहता है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं। तो बट if we can't donate money, if we can't make some buildings or can't do some more for the society, at least we can donate blood। और जब भी आप डोनेट करते हैं आपको जो फीलिंग होता है ना, that is excellent, out of this world। वो लगता है कि हाँ मैंने किसी की जान बचाई, और अभी तो आप एक ब्लड से 2 आदमी 3 आदमी की जान बचा पाते हैं, और ये हमको शायद रूटीन लगता है अभी, लेकिन जिनको मिलता है, जिनके साथ में होता है, उनसे पूछेंगे तो जो लोग पहली बार हॉस्पिटल में आते हैं उनको ब्लड की जरूरत। अभी हमारा जस्ट कुछ दिनों पहले मुझे याद है एक प्रेग्नेंट लेडी थी, डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम हुई, और इस शटडाउन के अंदर भी बहुत सारा ब्लड दिया हमने, और वो इतना सारा लेटर लिख के गई, इतना थैंक्स बोल के गई कि साहब आपके कारण हमारी जान बच गई, क्योंकि ब्लड अवेलेबल नहीं है कहीं भी। तो मेरा सिर्फ एक ही ये है कि आप ब्लड डोनेट करो। एडवांटेज, इसके अलावा एडवांटेज क्या होता है, बहुत सारे डोनर्स हमारे ऐसे आते हैं, उनको पहली बार हम जब चेक करते हैं मालूम पड़ता है उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, बहुत बार हमको मालूम पड़ता है उनका हीमोग्लोबिन 6 है या 7 ग्राम है ओनली, बहुत कम हीमोग्लोबिन है। तो ऐसे केसेस में यदि किसी का ब्लड, आप देखते हैं हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बहुत बार पेशेंट एडमिट होते हैं विद कंप्लेंट ऑफ स्ट्रोक होता है या हार्ट फेल हो जाता है। वो इसीलिए होता है कि उनके अंदर प्रॉब्लम होती है लेकिन डिटेक्ट नहीं होती, या वो उसको इग्नोर करते जाते हैं। यहाँ पर आके मालूम पड़ता है अच्छा तो स्टार्टिंग हुई है, हमको पता है, हम कहेंगे डॉक्टर के पास जाओ, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, तो बीपी कंट्रोल रहता है, कभी आपको इमरजेंसी में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे केस में आपको पता है कि हाँ मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या मेडिसिन लेनी है। सेम वे कि जो काफ़ी डोनर्स में हमको मिलता है कि HIV पॉजिटिव आया, हेपेटाइटिस बी आया, हेपेटाइटिस C आया, यदि उनको मालूम नहीं पड़ेगा तो वो चीज़ें सब इतनी एडवांस हो जाएंगी कि बाद में ट्रीटमेंट भी नहीं होता है। लेकिन अर्ली स्टेज में जब मालूम पड़ता है तो हम डॉक्टर के पास भेजते हैं, तो उनके पास काफ़ी सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं जिसके अंदर वो नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं अपनी। तो ये हमारे एडवांटेज है ब्लड डोनेशन के, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। हाँ जी सर, अगर ज़रूरत पड़ती है मुझे, मैं कोई फैमिली मेम्बर को, क्या ब्लड मिलेगा? डेफिनेटली, यदि आप रेगुलर डोनेट करते हो ब्लड को ब्लड बैंक में जाके, तो ब्लड बैंक में यदि ब्लड अवेलेबल है तो क्यों नहीं मिलेगा, उनको ब्लड देना ही है। कोई भी ब्लड बैंक एक्सेस ब्लड स्टॉक नहीं करेगा कभी भी,
क्योंकि वो ब्लड उसको फेंकना पड़ेगा, उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, वो उसके लिए भी नुकसान है। और इसीलिए आप रेगुलर डोनेट करो ताकि ब्लड बैंक में ब्लड रहे और जब भी आपको चाहिए वो ब्लड मिल जाए आपको। अगर कुछ इन्फेक्शन पाया गया है ब्लड डोनेशन के दौरान तो क्या होता है और क्या वो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं? हाँ, जब भी आप फॉर्म भरते हैं ब्लड बैंक में, वहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि डू यू वांट टू नो एनी एबनॉर्मल टेस्ट। तो हम जो टेस्ट करते हैं HIV का, हेपेटाइटिस B का, हेपेटाइटिस C का, सिफिलिस, मलेरिया, इनमें कुछ भी एबनॉर्मल मिलता है तो एज पर गवर्नमेंट प्रोटोकॉल हम आपको इन्फॉर्म करते हैं, आपको बुलाते हैं, या तो अभी काउंसलिंग करते हैं या राइट जगह पे आपको रेफर कर देते हैं। तो मैंने बताया ना, इसका एडवांटेज ये भी है कि अर्ली स्टेज में बहुत आपको मालूम नहीं होता और जाने अनजाने आप उस इन्फेक्शन को स्प्रेड और करते हैं। आपने अपनी वाइफ को दे दिया या आपके घर में कोई आपने सेम चीज़ शेयर कर रहे हैं, तो वो चांसेस आपकी सेफ्टी भी रहती है और आपके जो बाकी लोग हैं फैमिली के अंदर उनकी सेफ्टी भी रहती है। और ये सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है, कोई भी ब्लड बैंक है वो आपके रिपोर्ट को बाहर कहीं भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो नहीं करता है। जी हाँ सर, जैसे कि बहुत लोग डोनेट करते हैं ब्लड और उसके बाद बहुत अच्छा लगता है, तो क्या सोसाइटी के लिए और कुछ कर सकते हैं? हाँ, मतलब आप ब्लड डोनेट करते हो, रेगुलर करते हो, लेकिन आपको लगता है मुझको और करना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने साथ में फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके नेबर्स हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। आप कैंप्स अरेंज कर सकते हैं, आप कैंप ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं। तो ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कीजिए ब्लड डोनेट करने के लिए, प्लेटलेट डोनेट करने के लिए, वाइट सेल्स डोनेट करने के लिए। दैट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर द सोसाइटी। एक और मैं आपको बताना चाहूँगा बीच में कि कभी कभी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमको इमरजेंसी में ब्लड डोनेट करना है। तो मैं आपको वो कहते हैं नहीं, हम किसी को ब्लड बैंक से फ़ोन आता है कि ब्लड डोनेट चाहिए मुझको, तो वो पूछते हैं कि नहीं किसी को इमरजेंसी है तो ही करूँगा। मेरा हो सकता है उनके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे और बेटर एक्सपीरियंसेस होते हैं कभी कभी, लेकिन मेरा एक मानना है कि यदि कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो जो अमर अकबर एंथोनी मूवी में देखा था ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से ब्लड दोनों लेटा हुआ है, ब्लड जा रहा है और पेशेंट बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है। आप जब ब्लड डोनेट करेंगे तो उसका कंपोनेंट बनता है, उसका टेस्टिंग होता है, उसका ब्लड ग्रुपिंग होता है, इसमें 24 घंटे, 48 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगते हैं इन सब चीज़ों में। उसके बाद ही पेशेंट को ब्लड अवेलेबल हो पाता है। अब यदि इमरजेंसी के अंदर पेशेंट आया और हम कहेंगे अभी डोनर आप आओ और अभी सब कुछ करेंगे, तब तक तो पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको ये मत सोचना है हर ब्लड इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी कैटेगरी में इसको डोनेट कर रहे हैं, आप आओ, आप जब भी रेगुलर टाइम पे आते हो ब्लड डोनेट करके जाओ, तब डोंट क्रिएट इमरजेंसी, ठीक है। आपको इमरजेंसी को सॉल्व करना है, इमरजेंसी क्रिएट नहीं करनी है। तो ब्लड अवेलेबल होगा तो इमीडिएट पेशेंट को मिल जाएगा, अदरवाइज पेशेंट वेट करके ही खत्म हो जाएगा। जी हाँ सर, और लास्ट क्वेश्चन है सर, हम लोग ब्लड और प्लाज्मा कितनी बार दे सकते हैं, हाउ ऑफन? जो अभी रेसिंग गाइडलाइंस है, ब्लड कोई मेल डोनर है एवरी 3 months ही कैन डोनेट, फीमेल एवरी 4 months ही कैन डोनेट, एंड फॉर प्लेटलेट ट्वाइस ए वीक ही कैन डोनेट अप टू 24 times a year। साल में 24 बार ब्लड डोनेट कर सकता है कोई आदमी, प्लेटलेट डोनेट कर सकता है। ब्लड साल में 4 बार या 3 बार कर सकता है। थैंक यू सर, आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया हम लोग को और आपका वैल्यूबल टाइम जो निकाला हमारे लिए वो बहुत अच्छा रहा है। आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है हम लोग को ब्लड डोनेशन और इट्स इम्पोर्टेंस के बारे में। सो व्यूअर्स, थैंक यू वंस अगेन, एंड प्लीज़ कीप रिमेंबर दैट ऑलवेज डोनेट एज यू आर डोनेटिंग लाइफ टू समवन एल्स। थैंक यू। थैंक यू सुसेन।